Hello children, how are you? Today I am again back with the explanation of Standard 8 Grammar, chapter number 4, that is verbs expressing the future. I hope you would have watched the first part of this video and would have understood and written the exercise in the textbook. Today, before moving on to the next exercise, we would recap the previous rules which we are going to use in this exercise of future tense. So for that rules I would like to show you an animated video. So let's watch that video. So as you all know how the rules which I showed you in that animated video, that you have to apply according to the 4 tenses of future tense. Now let's move on to the F exercise, that is, first what you have to do in this, complete each pair of questions and answers using the simple present tense. The sentences should still convey future tense. Means you have to use present tense but it should show the future timing. In that, the first one has already been done for you. The first one is, I heard you are moving to Bengaluru. When do you leave? The answer is, that one is given, it will change like this. I leave for Bengaluru on 25th April. Now you have to use here the verb in present form, but still it is the future date, so it will convey वो future tense हमें बताएगा. Then the second question is, when does the football match end? कब खत्म होगा? The how you will write in that, I think the match starts at 7:30. मतलब टाइमिंग इज फ्यूचर टाइम, यू आर यूजिंग द प्रेजेंट फॉर्म इन दिस. इसमें प्रेजेंट फॉर्म का वर्ड आप लगा रहे हैं, एस विदाउट एस और एस ई एस आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो इट विल चेंज, वी कैन गो फॉर डिनर आफ्टर दैट. देन इन दिस यू हैव टू राइट इट इन द क्वेश्चन फॉर्म. सो थर्ड वन कैसे होगा, व्हाट टाइम, सो उसके साथ विच वर्ब यू विल यूज, डज द फिल्म बिगिन. नाउ इसमें फिल्म बिगिन के बारे में दिया हुआ आंसर में, सो यू विल आस्क अबाउट दैट इन द क्वेश्चन में, आपको वही वर्ड्स यूज करके क्वेश्चन फॉर्म करना है. सो द आंसर विल बी, द फिल्म बिगिन्स एट 8 PM, वी आर रनिंग लेट. देन द फोर्थ वन इज, व्हेन डज द ट्रेन लीव फॉर सिलीगुड़ी. नाउ हियर लीविंग is the verb, so answer it will change, that word will come in that answer में, वही word आपको use करना है according to the subject. So the answer will change like that according to the subject. आपको SES लगाना है. The train leaves, train is singular, so it will change to leaves at 11:45 AM. Then the fifth one is, what time does your sister have her singing class tomorrow? Means you are asking about the singing class. Have is the verb, that way you have to change it over here in the answer. So my sister, it with that उसके साथ कौन सा word आप use करेंगे, has her class at 1 PM tomorrow afternoon. Then the sixth one is, when do your grandparents reach Delhi. Now इसमें reach verb है, उसको यूज़ करके आपको आंसर में लिखना है. तो कैसे हो जाएगा, grandparents 2 जन होते हैं, सो विद दैट एस, बिना एस का वर्ड आप लगाओगे, रीच एट 9 in the morning. देन सेवेंथ वन इज, व्हाट टाइम डज द सन राइज टुमारो. अब राइज है वर्ब, वो आपको इसमें यूज करके लिखना है. सन के लिए आप यूज करोगे वर्ड इट, और इट के साथ आप एस वाला वर्ब लगाओगे, दैट इज राइजेस एट 5:15 AM टुमारो. वी कैन कैच द सनराइज इफ वी वेक अप अर्ली इनफ. Then the eighth one is, when dash your bus to Ooty tomorrow. अब इसमें वर्ब आप कौन सा यूज करोगे, is. तो आंसर है, my bus leaves at 4 in the evening. Now dear children, let's move on to the next exercise, that is exercise number
G. In that what you have to do, a table format is given, एक टेबल बनाया हुआ दिया है टाइम और उसके प्रोग्राम के साथ. तो आपको राइट अ ब्रीफ नोट इन द फ्यूचर टाइम using the simple present tense to explain the sports meet program schedule to the students को आपको ये शेड्यूल एक्सप्लेन करना है. तो एक ब्रीफ नोट बनानी है प्रेजेंट टेंस वर्ब यूज़ करके, जैसे हमने आगे के एक्सरसाइज में किया हुआ है. तो एज वन सेंटेंस इज गिवन ओवर हियर, यू हैव टू कंटिन्यू. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरह से आपको यहाँ पे लिखते जाना है एक के बाद एक. फर्स्ट सेंटेंस का बनाया हुआ है कि द चीफ गेस्ट अराइवल है, उसका हम क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पे अराइव्स हो जाएगा. और बाकी का एट आवर स्कूल अराउंड 8:30 AM, यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है वो लगा के आपको सेंटेंस बनाना है. देन सेकेंड दिया हुआ है 8:50 AM का टाइम है और चीफ गेस्ट लाइटिंग ऑफ द लैम्प. अब इसको आपको प्रेजेंट टेंस यूज करके फ्यूचर टाइमिंग दिखा के कन्वर्ट करना है. तो हाउ इट विल चेंज, द चीफ गेस्ट लाइट्स हो जाएगा द लैम्प एट 8:50 AM. उसके बाद नेक्स्ट है 9 AM दिया हुआ है और हेड बॉयज़ वेलकम एड्रेसेस दिया है. तो दैट सेंटेंस कैसे चेंज होगा, द हेड बॉय गिव्स, वो देता है इसलिए यू विल यूज़ द वर्ड गिव्स द वेलकम एड्रेस एट 9 AM. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है 9:15 AM चीफ गेस्ट स्पीच. अब उसमें आप कैसे चेंज करोगे, द चीफ गेस्ट वो भी देते हैं स्पीच, तो गिव्स वर्ड यूज करना है, अ स्पीच एट 9:15 AM. देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल स्पीच, ही ऑल्सो गिव्स द स्पीच ही और शी एंड टाइमिंग इज गिवन. तो द सेम वे यू विल चेंज, द प्रिंसिपल गिव्स अ स्पीच एट 9:40 AM. And the last one is commencement of the sports events and timing is given over here. तो आपको कैसे यूज करना है, द स्पोर्ट्स इवेंट्स कमेंस, इवेंट्स ज़्यादा है तो बिना इसका वर्ड यूज़ करोगे, कमेंस एट 9:50 AM. देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस और द फ्यूचर परफेक्ट. मतलब अगर वो कन्वर्सेशन में वो फ्यूचर में चल रहा है तो यू विल यूज़ कंटिन्यूअस, एंड अगर वो फ्यूचर में ख़त्म हो चुका है दैट टाइम आप यूज़ करोगे फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सा रूल अप्लाई करोगे, विल बी या शैल बी प्लस ING फॉर्म. और फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, विल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब जो ब्रैकेट में दिया हुआ है. इन दैट द कन्वर्सेशन बिगिन्स विथ सकीना. सकीना बोलती है आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, एंड इसमें आई डैश टू रायपुर नेक्स्ट मंथ, ये कंटिन्यूअस हो रहा है तो आप इसमें विल बी प्लस ING फॉर्म ऑफ मूव, मूविंग, तो विल बी मूविंग आएगा. देन माई मदर, this is also continuing, so you will use will be getting transferred soon. Then my parents are enrolling me in a new school in Raipur. So in this also it is continuous action going on in future. So will be joining Maryland school in November. Then Julie is replying, in the middle of the school year but half the syllabus. अब ये हो चुका होगा, कंप्लीटेड दिया है, तो यू विल यूज़ हियर कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट. मतलब विल हैव और बी का V3 फॉर्म बीन आ जाएगा. कंप्लीटेड बाय देन ऑल योर क्लासमेट्स, ये भी कंप्लीट हो चुका होगा तो विल हैव मेक का V3 फॉर्म हो जाएगा मेड. फ्रेंड्स, हाउ विल यू बी एबल टू कोप विथ बीइंग द ऑड वन आउट. देन सकीना इज रिप्लाइंग, my parents have already spoken to the principal and teachers at Maryland. Before I start their school there, the teachers, in this also it is completed action, so आप क्या use करोगे इसमें, future perfect tense. Will have speak का V3 form spoken to the students about my situation, and they also dash टू ऑफ माई क्लासमेट्स टू हेल्प. मतलब ये कंटिन्यूस एक्शन होगा तो यू विल यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस. विल बी आस्किंग, कर रहे होंगे काम, टू ऑफ माई क्लासमेट्स टू हेल्प मी कोप विद द एकेडमिक एंड सोशल डिफिकल्टीज. नाउ इन दिस यू हैव यूज्ड बोथ द टेंसेस. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, हियर सम प्रेडिक्शंस आर गिवन ओवर हियर. You have to put them in the form of statement using
फ्यूचर परफेक्ट, जो ब्रैकेट में वर्ब दिया है उसका फ्यूचर परफेक्ट आपको टेंस का रूल इसमें अप्लाई करना है। मतलब दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, इतना ही याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट में आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, विल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। खाली उसमें आपको कुछ सेंटेंस में और चेंजेस नहीं करने हैं, जस्ट खाली जहाँ ये ब्रैकेट आएगा वहाँ पे विल हैव और ये ब्रैकेट के वर्ड का V3 फॉर्म लगा देना है। जैसे हियर इट इज गिवन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय मोर देन 10 बिलियन बाय द ईयर 2050 AD। तो आपने इसमें क्या किया, द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज इट इज लिख दिया और उसके बाद यहाँ ऐड हो जाएगा विल हैव और उसके साथ इंक्रीज का V3 फॉर्म इंक्रीज्ड बाय, बाकी रेस्ट एज इट इज आपको कॉपी डाउन करना है, मोर देन 10 बिलियन बाय द ईयर 2050 AD। सेम वे अब ये पूरा सेंटेंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है द सेम वे यू विल राइट डाउन ओवर हियर। रेस्ट द इन द पेपर व्हेन यू आर राइटिंग दैट टाइम यू हैव टू ऐड द होल सेंटेंस, खाली ये चेंज करके बाकी का एज इट इज कॉपी डाउन करना। So in this exercise just you will change the form of this word with future perfect tense। तो इसमें आंसर कैसे बन जाएगा, by the middle of the 21st century India, आपको क्या ऐड करना है, will have, और become का V3 फॉर्म become ही रहेगा, a world power, ये आंसर बन जाएगा। Then let's move on to the third one, same all the rules you have to apply it in this exercise। खाली आप लोग को future perfect tense ही अप्लाई करना है इसमें, खाली ये word के लिए, बाकी का sentence as it is रहेगा। So what will be the answer for third one? It will be by 2025 AD the world's reserves of non-renewable fuel will have dwindled, इसका V3 form, by a third। Then फोर्थ वन का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफर्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, क्या ऐड करेंगे, विल हैव और पीक का V3 फॉर्म पीक्ड बाय 2030 AD। देन फिफ्थ वन में कैसे हो जाएगा, बाय द ईयर 2040 AD वी, उसके साथ क्या ऐड करेंगे, विल हैव, शिफ्ट का हो जाएगा शिफ्टेड फ्रॉम प्राइवेटली ओन्ड गैस पावर्ड कार्स टू शेयर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बाकी का एज इट इज कॉपी डाउन करना है। देन सिक्स्थ वन, इसका आंसर होगा बाय 2060 AD कंप्यूटर्स, उसके बाद आप क्या ऐड करेंगे, विल हैव और टेक का V3 फॉर्म टेकन ओवर अवर वर्ल्ड कंप्लीटली। देन सेवेंथ वन में कैसे हो जाएगा, बाय द ईयर 2050 AD साइंटिस्ट, उसके साथ क्या ऐड करेंगे आप, विल हैव और फाइंड का V3 फॉर्म फाउंड अ क्योर फॉर एवरी नोन डिजीज। नाउ द लास्ट वन, व्हाट विल बी द आंसर, बाय द टर्न ऑफ द 22nd सेंचुरी पीपल, उसके साथ ऐड करेंगे विल हैव और स्टार्ट का V3 फॉर्म स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्पेस टूरिज्म। नाउ here we end up our that exercise. Now let's move on to exercise J, and this exercise is also very simple, just the future form of the words which are given in the bracket you have to add it to that, और कुछ इसमें नहीं करना है, just you have to use the future form of that verb। mostly in all the fill-ups just will लगा के you have to add the word जो bracket में दिया हुआ है। in that first one is already been done, if you work to a plan you will complete the project in time or even ahead of time। अब इसमें आप क्या करेंगे, सेकेंड वन में you will और be दिया हुआ है वो आप इसमें ऐड कर देंगे, तो कैसे हो जाएगा, you will be late if you, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है not hurry, तो जस्ट will लगा के will not hurry। then the third one is I must leave at once, I have had a long day and I am feeling very tired, I think I will go, just will लगा के ये वर्ड आपको ऐड करना है यहाँ पे, straight to bed when I will get home। then fourth one, the Sumit's party, again वही प्रोसीजर, will make a try for the top if there will be a break in the वेदर, जस्ट आपको इसमें विल लगा के वो वर्ड उसके साथ कनेक्ट कर देना है। देन द फिफ्थ वन इज आई, अगेन सेम थिंग, विल टेलीफोन यू एज सुन एज आई विल अराइव एट सिकंदराबाद स्टेशन।
Then the sixth one is, if you will telephone me as soon as you will arrive at Sikandrabad station, I will come and pick you up. Then the seventh one is, Suresh will surely make it to the top 10 this time. I for one will be, इस सभी में आपको खाली will लगा के उसके पीछे वो वर्ड ऐड कर देना है. Very surprised if he will not make it. Then the eighth one is, once the monsoon will be set in the roads in this area will become impassable. Now इसमें खाली will लगा के the same word you are adding it to that. Then the ninth one is, we will wait, again will लगा के wait जो ब्रैकेट में दिया है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, until we will hear from you. Then the last one is, we will go for a picnic on Saturday if the weather will be fine. So dear students, here I end up my chapter with the second part. So watch both the parts of the chapter and see the animated video properly so that you will come to know about the rules which you have to follow in the chapter. I hope you would have understood this chapter and you have to complete this chapter in the textbook itself with pencil. Thank you all of you.